The one state that sends maximum, the 80 members to the lower house of the parliament, is the state of Uttar Pradesh. 13 seats today from Uttar Pradesh are facing polling, including Varanasi and Gorakhpur. So here I want to tell you, as if I'm at the ghats of Varanasi in Kashi, where what the situation is looking like. While the polling is presently on, let me take you through some of the key candidates also when we mention. Look closely on your screens. Now remember, well, BJP that has won earlier, majority of the seats, 9 out of 13 of the 7 phase elections that are held. Of course, the star campaign of the Bharatiya Janata Party, who has twice won from Kashi, which has now become its Karma Bhumi, this time again is being challenged by Ajay Rai. Remember, while Prime Minister Modi may have had, of course, a historic margin of vote that he won with, but Ajay Rai continues to be also a local strong face and is challenging Prime Minister Modi. Ravi Kishan from Gorakhpur won earlier, again this time a candidate, speaking to Ashutosh. Let's listen in. यहाँ दूसर तस्वीर रहल बदल गई लहल बाब फिर हुए निषाद फैक्टर हम यहाँ आके खड़ा हो गए ना, हम काम करे लगे। जब काम करबो तो कुछ चिंता नहीं। 5 साल यहीं रहे, यहाँ का वोटर बन गए, यहीं रोजगार, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग शुरू किए, बच्चों को काम दिए, या काम करवाए, कुल जोन बना था, कुल सड़किया पानी वहाँ खड़े रह के बनवाते। अच्छा, ये जितने लोग मैं देख रहा हूँ, नेता से ज्यादा सब आपको अभिनेता और अभी ये फैन फॉलोइंग है, तो ये नेता वाली फैन फॉलोइंग है अभिनेता वाली? मैं नेता तो बन नहीं सकता हूँ, मैं सेवक हूँ, अभिनेता और सेवक रहूंगा। गरीबी से आया हूँ, मैं सेवा कर सकता। अच्छा, तो हर दहिया तो पूरा भीज गई, इतना लोग बांट रहा है, जैसे मौसम बदल जी जही ही लोग वोट डाले। मौसम बढ़िया चला था, मौसम इससे बढ़िया है हमारे, तो चूंकि हमको पसीना बहुत आता। तो आज इंडिया टुडे वाला एग्जिट पोल आवे वाला वा, बता दे सबके का हुई। इंडिया टुडे पे बहुत ही ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं, और देश कहेगा कि तुम भी मोदी हम भी मोदी, हर हर महादेव, राम राज्य बरकरार रहेगा, विकसित भारत, विराट भारत। तो अब जिंदगी कैसन बा? अब विपक्षियन के जिंदगी झंड बा। तब कहा कि तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, भरपूर जवानी में ये महफिल का मजा हम यहाँ मर्जी। There you heard Ravi Kishan, the BJP candidate from Gorakhpur, visiting booth to booth, every area. After casting his vote, now he is taking stock of the situation at Ground Zero in Gorakhpur. With Ravi Kant, this is Ashutosh Mishra for India Today. So that's, remember in his trademark style and how he says, I can never be a politician, I am always a sevak, a servant. That's what a lot of BJP leaders tend to say, specifically when there's a dichotomy of the appreciation of an abhineta or a neta. This time, phase 7, among the 13 seats that are going to vote this time out of 80, these are some of the key election battles that are taking place. Prime Minister Modi and Ajay Rai, of course, we know what's happening, but I want to tell you about how Uttar Pradesh and why it is so crucial, because this is where there's a direct contest. The NDA alliance partners and the India Bloc alliance partners. Prime Minister Narendra Modi's bastion Kashi, of course, is of prime focus, but also Gorakhpur, where UP Chief Minister now Yogi Adityanath has represented the Gorakhpur constituencies as a Member of Parliament for 5 times, 1998 to 2017. Till Ravi Kishan then became the Member of Parliament. He's again hopeful of a return. But there's also Apna Dal's Anupriya Patel. Remember that Dawn-turned Neta, Ansari's brother Afzal, were among the first ones to also cast their vote this morning. In 2019, the parties which are a part of the opposition India bloc won 19 seats out of 57. Vote share, 37.52%. Ruling BJP-led NDA had won 30 seats, receiving approximately 40% of the votes. So this is where the BJP maintains a stronghold at the state level and also in the parliament. But will the India bloc, specifically with the constant rallies, roadshows, decisions, alliances, be able to spring a surprise this time? जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है, उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा
एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है। उत्तर प्रदेश, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या तस्वीर निकल के आएगी, क्या आप कह रहे हैं? नहीं, पूरे देश के पैमाने पर तस्वीर निकल के आ चुकी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वो जो सपना था 80 में 80, वो सपना चकनाचूर हो चुका है। मोदी जी को अपनी सीट बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जोगी जी को अपनी साख बचाना मुश्किल हो रहा है। 13 सीटें हैं लास्ट की, इसी में योगी जी की भी सीट है और मोदी जी की भी सीट है। देखिए, जनता फैसला करने जा रही है। पिछली बार क्या स्कोरिंग थी इस राउंड के चुनाव की आपको पता है। अब इस बार क्या होगी आगे देख लीजिएगा। पहले तो सभी देशवासियों से अपील है, पहले मतदान फिर जलपान। मैंने सुबह सुबह आकर अपना वोट डाला है, आप भी अपना वोट देने के लिए जरूर जाएं। खूब सारा पानी पीकर घर से निकलिए, मतदान स्थल तक जाइए, अपने और देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट डालिए। मुझे लगता है कि जब मैं अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में लेकर जाती हूं, हालांकि उन्हें पहले से ही सब कुछ अपनी नजर के सामने दिख रहा है, तो मुझे विश्वास होता है जनता की प्रतिक्रिया से कि तीसरी बार उनका आशीर्वाद उनके इस अमूल्य वोट के रूप में जरूर मिलेगा। अजय जी, आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, बड़ा चुनाव बनारस का, क्या कुछ नहीं, पूजा तो मैं हमेशा करता हूँ, मैं घर पे करके निकला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बड़ा गणेश, वहाँ से दर्शन प्रारंभ होगा और वहाँ से हम अपनी यात्रा वहाँ से दर्शन करके यात्रा करेंगे। और ये देखिए, हमारे ये सब असली लोग हैं, ये जो काशी के हमारे ये जो सेवक हैं, ये देखिए ये लोग हैं हमारे जो असली सेवक हैं। कितना बड़ा मुकाबला देख रहे हैं? हमारा मुकाबला यही डंगे की चोट पर जिताएंगे अजय। बीजेपी कह रही है कि मुकाबले में बहुत एक तरफा है। वो बीजेपी बुरी तरीके से हार रही, परेशान है। सारे मंत्रियों को उतार दिया, सारे राज्यपाल उतर गए। इससे पता चलेगा कि भाजपा कितनी परेशान है और बुरी तरीके से हार रही। मुद्दे क्या थे आप लोग के? मुद्दे यही जो काशी का मामला है, काशी की जो चीजें चल रही हैं, काशी के अंदर जो काम कुछ नहीं किया। आए थे टोटो बनाने या कोयटो बनाने, टोटो थमा दिया। मैसेज देंगे आप किस और? मैं मैसेज ये दूंगा कि पूरी काशी के लोग निकलकर सड़क पर आवे और अपने भाई अपने बेटे को चुनाव जिताने जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है।